Hello everybody. Here I'm Savitri of GMA classes. Welcome to you all. Today we are going to discuss class 10 mathematics chapter 3 linear equations in two variables. Linear equations in two variables. Now, first of all, we must know what are equations. Equation is a statement of equality. That is, when we say something is equal to something else, we call it an equation. Statement of equality is called an equation. That is, something is equal to something else. Here, as an example, I can say 5x is equal to 70. See here, 5x is equal to 70. So here two terms separated by an equal to sign is an equation. Another example, 7x plus 8y is equal to 31. These are all called equations because here 5x is equal to 70. Here 7x plus 8y is equal to 31. Here these terms are separated by an equal to sign. That is why it is a statement of equality. Now, we have studied equations in the earlier classes also. But there we have studied equations with one variable. See here in the first equation I said 5x is equal to 70. Here x is the variable. There is only one variable x. And 5 is the coefficient of x. Here in the second equation, we have x and y as two variables here. So we are going to discuss equations in two variables now. Here in this class or in this chapter, we are going to discuss equations in two variables. Then, x and y are two variables here. Now let's see what are linear equations. Linear equations means in the previous chapter we learned linear polynomial and quadratic polynomial, cubic polynomial, etc. So in that, linear polynomial is a polynomial of degree 1. Here, same way, linear equation is an equation of degree 1. Linear equation is an equation of degree 1. Here 7x plus 8y is equal to 31 is a linear equation of degree 1. Linear equation in two variables. Here because the degree is 1, we call it a linear equation. Now, the chapter is pair of linear equations. What a pair of linear equation? You know a pair means two. So here we are going to take two equations together. We are going to take two linear equations together. That is why this chapter is taken as pair of linear equations in two variables. A pair means two. We are going to take two equations together. And when we take two equations together, we call it a pair of
when two equations taken together is called simultaneous equations. Simultaneous equations. Here we will always take it as a pair. Now, what is the solution of an equation? See here, in the first equation 5x is equal to 70. When we take it, I told you x is a variable. What is a variable? Variable means a number or a literal number which can take up any value according to the situation. So, x is a variable, it does not have a fixed value. Same way here, x and y have no fixed value. That is why they are called variables. Whereas 7, 8, 5, 70, 31, all these are constants. Now, according to the situation or according to the equation given, there is a particular value for x. That value is called the solution of this equation. Example, 5x is equal to 70 is the first equation that we have taken. This will imply that x is equal to 70. This 5 will come to the other side, or we will be transposing 5 to the other side. So it will be 5 ones are 5, 2, 20, 14. 14 5s is 70. So here in this particular equation, x is taking up a value 14. Now if I take another equation, 10x is equal to 120. So here x will be equal to what? This 10 will come to the other side. 120 upon 10. These two are cancelled, so that's equal to 12. So here in this equation we got x is equal to 14. In this equation we got x is equal to 12. So x is equal to 14 is the solution for this equation, and x is equal to 12 is the solution for the second equation that we mentioned you. Okay, that is why, see, it is taking different values. That is why it is called a variable. Its value can vary according to the situation. Now, in the same way, 7x plus 8y is equal to 31. That also can have different values. X and y can have different values. So we can find the solution of this equation. That is, we can find different values for x and corresponding values of y which satisfy this equation. That is, you take a particular value for x and you find the corresponding value of y so that this equation is satisfied. For example, if I take let x be equal to 1. Then this equation will become 7 into 1 plus 8y is equal to 31. It should satisfy the equation. The value should satisfy the equation. So this is 7 plus 8y is equal to 31. This will imply 8y is equal to 31 minus 7, that's equal to 24. This implies y is equal to 24 divided by 8, that's equal to 3. So, solution of this equation is x is equal to 1
y is equal to 3. This is one of the solutions of this equation. Did you all understand? So when we do the exercises, we'll be taking different values and finding out the solutions. Now, how to find the solution of linear equation? How to find the solution of linear equations in two variables. How to find the solutions of this equation in two variables. There are different methods for this. One, by graphical method. One is graphical method. From the very name itself, we will come to know that we will make a graph for the equations given. And previously also we have studied that a linear equation, when it is plotted, when the values are plotted on a graph, you will always get a straight line. For a linear equation, we will always get a straight line. Then, so that is why by drawing a graph, we can find out the solution for this, for the given pair of equations. Another, algebraic method. Algebraic method. In the algebraic method, we have solution by substitution method, and by elimination method. And there is a cross multiplication method as well. Cross multiplication method. But in this year, the book is changed this year. It does not have the cross multiplication method. So we will not be doing this method now. But I just wanted you to know that there is a method like this. So we will be discussing graphical method and solution by substitution method, solution by elimination method. Now, how will we find the solution by graphical method? We will come to know by drawing the graph. We can say that how many solutions are there for a particular equation. How many solutions are there for a particular equation? Like for example, see, this is the x-axis and this is the y-axis. Y dash. Now, when I plot one equation, I can get a straight line like this. I'll get a straight line. As I told you, linear equation will give you a straight line. Then, the second equation when I plot on the same graph, I may get a line like this. Now, there is another possibility. That is, here the two lines are intersecting at this point. Now, there is another possibility that x dash, y dash. What can be the other possibility? I am getting a line like this, and
I may get another line like this. That is, the two lines are going parallel here. Here the two lines are intersecting. Here the two lines are going parallel. What is the third possibility when we have two lines? Can anybody guess? Yes. See here, I am getting a line like this. Suppose I am getting a line like this. When I plot the values of the second equation, it is possible that I am getting a line like this. That is, it will go with the same line. It will go over the same line as the first one. That means we can say that the lines are coinciding. The lines are coinciding. One line is passing over the other side. So from these graphs, these are the three possibilities that we get when we plot the values of the graph. Now, how will we come to know how many solutions are there for the particular pair of simultaneous equations? See, if I am getting the two intersecting lines, then that means this point x, y is the solution for these two equations. That is, these two equations have only one solution. The two equations, when we plot, if we are getting intersecting lines, this is called the point of intersection. Its coordinates are x, y. Then this is the solution of the pair of simultaneous equations here. Now, so we say that these two equations have got one solution, or we say that unique solution. These two equations have got unique solution. Now, what about second one? This was the first one, first possibility. Second possibility is that we are getting two parallel lines. That is, a1x plus b1y plus c is equal to 0. This is the equation for this line, and this line a2x plus b2y plus c is equal to 0. So these are the two equations, and we got the two lines like this. They are going parallel. They are not meeting anywhere. So, if they don't meet anywhere, that shows that the two equations do not have a solution. No solution for these two equations. That is, these two equations do not have a solution. Did you understand? The parallel lines show that these two lines have no solution in common. Now what about the third one? Third one line, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is one line, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that is also passing through the same line. This shows that all the solutions of the first line are the solutions of the second line also. पहले लाइन का सारे सॉल्यूशन सेकेंड लाइन का भी सॉल्यूशंस होता है. उसका मतलब इन दोनों लाइंस को बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस है. उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो पहले केस में दो लाइंस के दो इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्ट किए थे. दो स्ट्रेट लाइन मिलता है लीनियर इक्वेशंस का, दोनों का लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं. वो जो सिंगल जो पॉइंट है वो
इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन है, इसलिए हम उनको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट इज दीज टू लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो एक ही सॉल्यूशन होता है। और सेकंड केस में क्या है, लाइन्स ऐसे बिल्कुल पैरेलल जाता है, बिल्कुल पैरेलल जाता है दोनों लाइन्स। a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है दोनों इक्वेशंस, उनके लाइन्स एकदम पैरेलल जा रहा है, एकदम पैरेलल जाता है। उसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड केस में क्या होता है, एक लाइन जो है, यानी पहले इक्वेशन का एक लाइन जो मिला, सेकेंड इक्वेशन का लाइन भी बिल्कुल उसी के ऊपर से पास हो रहा है, उसी को टच करते हुए पास हो रहा है, उसी को कोइंसाइड कर रहा है। उसका मतलब पहले इक्वेशन का हर सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आ गया अभी सबको? अच्छा, अब ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब मान लो कि हमको लाइन्स ऐसा मिल रहा है, एक लाइन ऐसे मिले, एक लाइन हमको ऐसे मिले। अब क्या होगा इसमें, अभी ये क्या हुआ, पहले वाला जैसे ही होगा, क्योंकि हमको पता है ये लाइन है और इन लाइंस को हम इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, इसको और एक्सटेंड में करूँगी, इसको भी एक्सटेंड करूँगी, कहीं ना कहीं जाके वो मिलते हैं आपस में। तो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन हमारे सरफेस ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द पेपर में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। सो ऐसे लाइंस भी मिल जाए तो भी हमको इसमें वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। ये लाइंस के शेप देख के हम समझ सकते हैं। सबको आगे समझ में बहुत अच्छी तरह? एक बार और बता दें, हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में x y ऐसे दो वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है वो इक्वेशंस का डिग्री 1 होता है। अब इसमें हमको अलग अलग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना। अब इन सॉल्यूशंस कैसे पता कर सकते हैं? पता करने का ग्राफिकल मेथड भी है, अलजेब्राइक मेथड भी है। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ को देख के हम उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। और अलजेब्राइक मेथड है, अलजेब्राइक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लेकिन आपके बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इस बार उसको नहीं पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब। अब ग्राफिकल मेथड देखते हैं। हमको पता है लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम ये दो इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। ये पहला इक्वेशन है, उसको प्लॉट किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला। दूसरे इक्वेशन को प्लॉट किया तो हमको एक और स्ट्रेट लाइन मिला, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट जहाँ ये दोनों इंटरसेक्टर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है x y। ये पॉइंट होगा इनका सॉल्यूशन, इन दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। उसको हम बोलते हैं दीज टू इक्वेशंस हैव गॉट वन सॉल्यूशन, और उनको यूनिक सॉल्यूशन है बोलते हैं, है ना। सॉरी। दूसरा
पॉसिबिलिटी है, दोनों इक्वेशंस का लाइंस एकदम पैरेलल जाता है। पैरेलल जाता है उसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो वी से दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आया समझ में? ऐसा हम पता कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन हैं और सॉल्यूशन क्या है, वो हम एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से जाता है। उसका मतलब पहला इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस हैं वो सारे सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन रहेगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा ये दोनों इक्वेशंस का। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा। नाउ ऐसा भी एक चांस आ सकता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर तो पैरेलल लाइन से इधर भी कहीं टच नहीं कर रहा है, एक से एक के ऊपर से भी दूसरा नहीं जा रहा, तो क्या हो सकता है? इनका देख के ये लाइन से तो हमको पता होना चाहिए कि ये लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटली, दिस लाइन्स कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली। तो हमको इनका वे देख के हमको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं बाहर जाके इंटरसेक्ट होगा, इसलिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जैसे इसके जैसा, पहला केस जैसा। आगे समझ में सबको? बहुत अच्छा। अभी अच्छे से 2 बार एक्सप्लेन कर लिया, अब समझ में आया होगा। अब हम क्या बोलते हैं, ये 2 इक्वेशंस, इस केस में जो 2 इक्वेशन है उसको हम वन सॉल्यूशन है, तो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉरी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। उसका मतलब है जो 2 इक्वेशंस जिसका एक या ज़्यादा सॉल्यूशन हो तो उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब इस केस में, सेकेंड केस में, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का लाइंस पैरेलल जा रहा है, उसका मतलब उनका नो सॉल्यूशन है। So what is the definition of consistent equations and inconsistent equations? Consistent equations, consistent equations, उसका क्या है? Equations with one or more solutions are called consistent equations. Consistent equations. अब क्या है? inconsistent. Inconsistent equations क्या है? Equations with no common solution or no solution at all are called inconsistent solutions. Inconsistent equations. आ गया बच्चों? समझ में आ गया अच्छी तरह? एक बार और रिपीट करती हूँ। कंसिस्टेंट इक्वेशन यानी इक्वेशंस जिनका एक या ज़्यादा सॉल्यूशंस है उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, और जो इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब
अब इसमें ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस, अब ये ग्राफिकल मेथड में हम बता सकते हैं कि वन सॉल्यूशन है क्या, नो सॉल्यूशन है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या। अब इसमें अलजेब्राइक मेथड में हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें वन सॉल्यूशन है क्या, नो सॉल्यूशन है, या infinite number of solutions है क्या. So let us write the general formula of linear equations. A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, second equation. Okay, listen children, I am very sorry. पहले जब हम लीनियर इक्वेशंस डिस्कस किया था उसमें A1x प्लस B1y प्लस C1 जनरल इक्वेशन है. इसमें A1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, B1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये बताना मैं भूल गई थी, सॉरी. सो इन इक्वेशंस में A1 0 नहीं होना चाहिए, B1 0 नहीं होना चाहिए, A2 0 नहीं होना चाहिए, B2 भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर मान लो कि A1 0 हो गया तो ये क्या होगा, 0x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. अब क्या ये x टर्म रहा ही नहीं, तो ये वन वेरिएबल हो जाएगा. इधर भी अगर मान लो B2 0 हो गया तो ये B2y टर्म ही कैंसिल हो जाएगा. सो A2x प्लस C2 इज इक्वल टू 0 अगेन सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा, है ना. इसलिए ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशंस में. A1x प्लस B1y प्लस Z1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. इसमें द वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट्स जो है 0 नहीं होना चाहिए. ओके, अब हम ये अलजेब्राइक मेथड में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन इक्वेशंस का, गिवन इक्वेशंस का, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का या गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं. अगर है तो सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें हमको सारे रेशियोज निकालना. कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के रेशियो A1 अपॉन A2 निकालना, देन B1 अपॉन B2 निकालना, C1 अपॉन C2. ये तीन रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के रेशियो निकालेंगे. अब इसमें ये तीनों रेशियो निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे इनको. सो A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 से अलग है और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, ये वैल्यूज डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हमको मिल रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, उसका मतलब है हमको इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेगा. क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेगा. इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब यूनिक सॉल्यूशन. इधर ग्राफ में देखा था हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का यूनिक सॉल्यूशन है ना. सो यूनिक सॉल्यूशन. सो हमको अलजेब्राइकली भी इक्वेशंस देख के हम समझ सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा या सॉल्यूशंस होगा ही नहीं, है ना. इसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा. देन सेकेंड इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2.
अगर ऐसा है तो हमको क्या होगा, ये हमको मिलेगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मिलेगा। पैरेलल लाइंस यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस मतलब नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उनको हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, है ना। आगे समझ में अच्छी तरह। अब तीसरा पॉसिबिलिटी है, तीनों ही इक्वल है। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। ऐसा है तो क्या होगा, तीनों रेशियोस अगर इक्वल है तो हमको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से निकल जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगा। एक कोइंसिडेंट लाइंस मिलता है उसका मतलब उनको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेगा। आगे समझ में, इस तरह हम अलजेब्राइकली भी हम इनका डिसाइड कर सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल लाइंस होगा। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट ये इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इतना हम डिसाइड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स। सो इस पार्ट को एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। अलजेब्राइक मेथड में क्या है, हमारे दो इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस में से हम लोग पहले x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो लेते हैं a1/a2, फिर y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो है b1/b2, देन कांस्टेंट्स की रेशियो है c1/c2। ये तीनों रेशियोज लेके हम कंपेयर करेंगे तो हमको ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा निकाल सकते हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो उनमें कितने सॉल्यूशंस आएगा वो भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। इन दो इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी a1/a2 b1/b2 को तो इक्वल हो गया लेकिन c1/c2 से अलग हो गया। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 है तो उसका मतलब है ये दो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगा। आया समझ में अच्छी तरह, बहुत बढ़िया। नाउ another possibility a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों के तीनों इक्वल है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या होता है, उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, यानी उनका कुछ सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी पहले लाइन का जितना भी सॉल्यूशन है सारे सेकंड लाइन का भी सॉल्यूशन होगा। तो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा, एक लाइन दूसरे के ऊपर से जाएगा। आगे समझ में सबको, बहुत बढ़िया। नाउ इतना ही आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का।
तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यानी इक्वेशंस जिसका डिग्री 1 हो और जिसमें 2 वेरिएबल्स हो उनको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड हम 2 इक्वेशंस को साथ में लेते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को साथ साथ लेके चलेंगे इस चैप्टर में, ओके। अब उसमें सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे और अपन को जनरल फॉर्मूला क्या है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस को साथ साथ लेके चलेंगे, इसलिए हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालना, उन पर्टिकुलर इक्वेशंस में वेरिएबल्स का क्या वैल्यू आएगा वो बताएंगे, है ना। अब ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस निकालने के लिए हमको 2 मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से ही हमको पता चलता है को ग्राफ बनाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इनका सॉल्यूशंस क्या है, ये जो इक्वेशंस की सॉल्यूशन है या नहीं है तो कितना सॉल्यूशन है। देन दूसरा मेथड है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में भी ये है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड आपके कोर्स में है इस साल की। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, अभी आपको नहीं है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे और ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी बनाएंगे हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। सी इसमें 2 ने इक्वेशंस दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम उन दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे तो हमको सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, उनको 1 सॉल्यूशन होगा। यानी कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन है उनको कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। अगर लाइंस पैरेलल जाते हैं तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड कोइंसाइडिंग लाइंस आता है उसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगा। आया समझ में? 2 बार एक्सप्लेन कर लिया। अभी आई एम श्योर दैट सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड में भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस की x की कोएफिशिएंट्स की रेशियो a1/a2 लेना, y की कोएफिशिएंट्स की रेशियो b1/b2 लेना, कांस्टेंट्स की रेशियो c1/c2, और उनके कंपैरिजन से हमको मालूम पड़ेगा कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या सॉल्यूशन है या नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हम डेफिनेटली ये तय कर सकते हैं कि हमको उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, यानी 2 लाइंस एक पॉइंट में कटते हुए मिलेगा, उसका मतलब उनका यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इनसे अलग हो गया, उसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इक्वेशन है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उनका प्लॉट करेंगे तो कैसे लाइंस मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगा, है ना। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों ही इक्वल है तो उनका मतलब वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, उनको बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब उनको हम प्लॉट करेंगे तो हमको मिलेगा कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा। अब दिस इज द introduction for this chapter.
लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी भी करेंगे। आगे समझ में सबको? अब प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब GMAS classes. Thank you, children. Bye.